بچوں، آج کی دلچسپ کہانی کا عنوان ہے چچا چھکن نے دھوبن کو کپڑے دیے۔ تو سنیے، چچی ایک دو بار نہیں 20 مرتبہ چچا چھکن سے کہہ چکی ہیں کہ باہر تمہارا جو چیز چاہے کیا کرو، مگر خدا کے لیے گھر کے کسی کام میں دخل نہ دیا کرو۔ آپ بھی ہلکان ہوتے ہو اور دوسروں کو بھی ہلکا کرتے ہو۔ سارے گھر میں ایک ہڑبڑی سی پڑ جاتی ہے، میرا دم الجھنے لگتا ہے۔ ہڑبڑی پڑ جانا یعنی گڑبڑ ہونا۔ اور پھر تمہارے کسی کام میں نے نقصان کے سوا کبھی فائدہ ہوتے ہوئے تو دیکھا بھی نہیں، تو ایسا ہاتھ بٹانا بھلا میرے لیے کس کام کا؟ چچا اس قدر ناشناسی سے کھنچ جاتے ہیں، یعنی چچا کی ناقدری ہو رہی ہے وہاں پر۔ چڑ کر کہتے ہیں، بھلا صاحب کان ہوئے، پھر کبھی آپ کے کام میں دخل دیا تو جو چور کی سزا وہ ہماری سزا۔ لیکن دخل در معقولات کا انہیں کچھ ایسا لا علاج مرض ہے کہ جہاں کوئی موقع ملا پھر لنگوٹ کس تیار۔ آج ہی دوپہر کی سنیے۔ چچی کا جی اچھا نہ تھا، گلا آ گیا تھا، اس کی وجہ سے ہلکی ہلکی حرارت بھی تھی۔ منہ سر لپیٹے دالان میں پڑی تھی کہ دھوبن کپڑے لینے آ گئی۔ چچی نے کہا، بریٹھنا، آج تو میرا جی اچھا نہیں، کل یا پرسوں آ جائیو تو میلے کپڑے دے دوں گی۔ دھوبن بولی، بیوی جی، بریٹھا آج رات بھٹی چڑھا رہا تھا، کپڑے مل جاتے تو 8ویں دن میں دے جاتی، نہیں تو وہی 10-15 دن لگ جائیں گے۔ چچی نے کہا، اب جو ہو سو ہو، مجھ میں تو اٹھ کر کپڑے دینے کی ہمت نہیں ہے۔ چچا چھکن پرلے دالان میں بیٹھے میاں مٹھو کو سبق پڑھا رہے تھے۔ میاں مٹھو یعنی طوطے کو سبق پڑھا رہے تھے۔ کہیں چچی کی بات سن لی۔ انہیں ایسے موقع اللہ دے، جھٹ ادھر آ پہنچے، بولے، کیا بات ہے، کپڑے دینے ہیں دھوبن کو؟ ہے ہم دیے دیتے ہیں۔ چچی بولی، اے خدا کے لیے تم رہنے دینا، ہلکم ڈالو گے سارے گھر میں، پہلے ہی میرا جی اچھا نہیں، کل پرسوں اللہ چاہے تو میں آپ اٹھ کر دے دوں گی۔ چچا کب رکنے والے ہیں بھلا؟ اللہ جانے کام ہی کا جنون ہے یا گھر کے کاموں سے طبیعت کو خاص مناسبت ہے، یا روک دیے جانے میں انہیں اپنے سلیقے اور سگڑاپے کی توہین نظر آتی ہے۔ بولے، واہ، بھلا کوئی بات ہے، یہ ایسا کام ہی کیا ہے، ابھی نمٹا دیتے ہیں۔ چچی جانتی ہیں وقت پر چچا کب کسی کی سنتے ہیں، وہ تو بڑبڑاتی ہوئی کروٹ لے پڑی رہیں، اور چچا چلے دھوبن کو کپڑے دینے۔ چچی ٹوک چکی تھیں، اس لیے آپ نے نہ تو کسی ملازم کو آواز دی، نہ کسی بچے کو بلایا، نہ کسی سے یہ پوچھا کہ کس کے کپڑے کہاں پڑے ہیں، خود ہی گھر کے جالے لینے شروع کر دیے۔ جو کپڑا نظر آیا خود ہی آنکھوں کے سامنے تان کر پرکھا یا نیچے پھیلا کر دیکھ لیا۔ کم بخت، پتہ بھی تو نہیں چلتا کہ پہننے کا کپڑا ہے یا جھاڑن بن چکا ہے۔ چماروں کے بچے بھی تو اس سے اچھی طرح کپڑے پہنتے ہوں گے۔ کسی کپڑے کو چھوڑا، کسی کو بغل میں دبایا، کہیں جھک کر چارپائی کے نیچے جھانکا، کہیں ایڑیاں اٹھا کر الماری کے اوپر نظر ڈالی۔ معلوم ہوتا تھا آج چچا نے قسم کھا لی ہے کہ جو کام ہوگا آپ ہی کریں گے، لیکن آخر کب تک؟ چچا چھکن کے لیے تو اللہ میاں بہانے پیدا کر دیتے ہیں۔ کپڑوں کی تلاش میں اسباب کی کوٹری میں گئے تھے۔ بچوں، اسباب کی کوٹری یعنی سامان والا کمرہ۔ 5 منٹ بعد اندر سے آوازیں آنی شروع ہو گئی۔ اب یہاں سے قصہ بہت دلچسپ ہو رہا ہے، غور سے سنیے بچوں۔ حسب معمول سارا گھر چچا میاں کے گرد جمع ہو گیا اور آپ نے سنانے شروع کر دیے اپنے احکام۔ اب کھڑے میرا منہ کیا تک رہے ہو، جمع کرو میلے کپڑے، پر دیکھو رہ نہ جائے کوئی، ایک ایک کونا دیکھ لیجو، دالان میں ڈھیر لگا دو سب کا۔ بندو، تو ہمارے کمرے سے میلے کپڑے سمیٹ لا، 2-3 جوڑے تو چارپائی کے نیچے حفاظت سے لپٹے رکھے ہیں، وہ لیتا آئیو،
और सुनना, वो छुट्टन या बन्नों का एक कुर्ता बांस पर लिपटा हुआ कोने में रखा है। परसों कमरे के जाले उतारे थे हमने, वो भी खोलता लाइयो। और देख, हवा के घोड़े पर सवार है कमबख्त। पूरी बात एक मर्तबा नहीं सुन लेता। हाँ, एक बनियान हमारा आतिशदान में रखा है, बूट पोंछे थे उससे, वो भी लेता आना। जा, भाग कर जा। इमामी, तू बच्चों के कपड़े जमा कर, हर कोने और ताक को देख लीजो। ये बदमाश कपड़े रखने को नई से नई जगह निकाल लेते हैं। नौकर रवाना हुए तो बच्चों की बारी आ गई। कहाँ गए ये सब के सब? ओ छुट्टन, वाह, लीजिए मुलाहिजा फरमाइए आपकी सूरत। अरे ये क्या हाल बनाया है? कोयलों में कहाँ जा घुसा था? उतार अपने कपड़े, नए कपड़े फिर मिलेंगे। पहले मैले कपड़े यहाँ लाकर रख। और ये बन्नों किधर गई? मैं कहता हूँ आखिर ये मरज क्या हो गया है तुम लोगों को? जहाँ काम की सूरत देखी, खिसक जाने की ठहराली। चलो अंदर, एक कागज और पेंसिल लाकर दो हमें। आखिर लिखे भी जाएंगे कपड़े या नहीं? लल्लू, तुम बिस्तरों में से मैली चादरें और तकियों के गलाफ निकाल लाओ। गरज 5 मिनट में घर की ये हालत हो गई गोया आंख में चोली खेली जा रही है। कोई उधर भाग रहा है, कोई इधर, कोई चारपाई के नीचे से निकल रहा है, कोई कोने झांकता फिर रहा है। किसी ने लिपटे हुए बिस्तर से कुश्ती शुरू कर रखी है। कोई कपड़े उतार तौलिया लपेटे भाग जा रहा है। साथ साथ चचा के नारे भी सुनने में आ रहे हैं। अरे आए, अबे लाए। सबके हाथ पांव फूल रहे हैं, सिट्टी गुम है, टक्करें लग रही हैं। कोई आधे घंटे की मेहनत से सारे कपड़े दालान में जमा हो गए। नौकर और बच्चे कपड़ों के ढेर के गिर्द दायरा बना खड़े हैं। सूरतें सबकी ऐसी हैं गोया स्वांग भर रखा है। किसी के मुंह पर मिट्टी है, किसी के बाल मिटियाले हो रहे हैं, किसी के कपड़ों पर जाले लगे हुए हैं। चचा चारपाई पर बैठे एक एक कपड़े का मुआयना फरमा रहे हैं। हर कपड़े को उंगली के सिरों से उठाकर देखते हैं। कभी बच्चों को कोसते हैं कि कमबख्तों को कपड़े पहनने का सलीका तक नहीं आया। कभी धोबन को डांटते हैं कि खबरदार, जो एक दाग भी बाकी रहा। कहीं बीच में वो बनियान भी हाथ आ गया जिससे आप बूट पोंछ रहे थे। ख्याल न रहा कि ये अपनी ही कार्रवाई है। बरस पड़े, अब देखो इसकी हालत। ये इंसानों का बरता हुआ मालूम होता है। अल्लाह जाने, बदतहजीब कहीं के दाग अच्छी तरह देखने से चचा को याद आ गया कि ये बनियान उनके अपने कमरे के आतिशदान में से बरामद हुआ है। चुनाचे फौरन कपड़ों में मिला दिया और इरशाद हुआ, चलो अब जो है सो है, अब कपड़ों को अलग अलग करो कि कौन सा कपड़ा किसका है। 10 हाथ कपड़े अलग अलग करने में मसरूफ हो गए। बच्चों, ये मंजर जरा गौर से सुनिए। हर एक को अपनी कारगुजारी दिखाने का ख्याल आया। धोबन चीख रही है, ए मियाँ जाने दो, ए भाई रहने दो, मैं अभी आप अलग अलग कर लूँगी। मगर बच्चे कहाँ सुनते हैं। कोई कहता है ये मेरी कमीज है, कोई कहता है ये तुम्हारी कहाँ से आई। किसी के पाजामे के पैंचों पर रस्साकशी हो रही है। कपड़े चरर चरर फट रहे हैं। चचा सब के नामों की फहरिस्त बनाने में मशगूल हैं। बीच में सर उठा उठा कर डांटते भी जा रहे हैं। फाड़ दिया ना, अब के बनाने को कहियो कोई नया कपड़ा। जो टाट के कपड़े ना बनवा कर दिए हैं तो कहना। चले जाओ सब के सब यहाँ से, हम अकेले सब काम कर लेंगे। बच्चों और नौकरों का काफिला रुखसत हुआ और धोबन के साथ मिलकर फहरिस्त बननी शुरू हुई। उसे हिदायत दी गई कि देख, हम पूरी फहरिस्त बनाएंगे कपड़ों की। सबके कपड़े जुदा जुदा लिखवाने होंगे और साथ ही बताना होगा कि इतने कपड़े गर्म हैं, इतने रेशमी और इतने सूती। धोबन बोली, यूं ही तो हमेशा लिखे जाते हैं। चचा को अपनी इस काबिल कद्र और मुहतमिम बिशान तजवीज़ की दाद न मिली तो धोबन से चिढ़ गए। पगली कहीं की,
हर रोज तो घर में हुल्लड़ मचा रहता है कि उसकी कमीज बदल गई, उसका पाजामा नहीं मिलता, और कहती है कि यूं ही लिखे जाते हैं कपड़े। यूं किसी को लिखना आता तो ये रोज रोज की झिकझिक क्यों हुआ करती। धोबन चुपकी हो रही, कपड़े गिनने शुरू कर दिए, पर अब पहले ही कपड़े पर नई बहस छिड़ गई। धोबन कहे कि कमीज छुट्टन मियाँ की है ये, चचा मुसिर हैं कि नहीं, बन्नों की है। धोबन कहती है मैं क्या पहली बार कपड़े धोने जा रही हूँ, इतनी भी पहचान नहीं है मुझको। चचा कहते हैं अहमक कहीं की, कपड़ा बाजार से हम लाते हैं, हम सिलवाते हैं, हम रोज बच्चों को पहने हुए देखते हैं, और पहचान तुझे होगी। शहादत के लिए बिंदु को बुलवाया गया। चचा ने उससे पूछा ये कमीज बन्नू ही की है ना। बिंदु की क्या मजाल के मियाँ की तरदीद करे। डरता डरता बोला मालूम तो कुछ उन्हीं की सी होती है, पर वो आप ही खुद ठीक ठीक बताएंगी। बन्नों की तलबी हुई। वो आते ही बोली वाह, ये फटी पुरानी कमीज मेरी क्यों हुई, छुट्टन ही की होगी। धोबन को चचा के मिजाज की कैफियत क्या मालूम, कह बैठी मैं ना कहती थी। चचा को आग लग गई। औलिया की बच्ची है ना ये तो, इन्हें क्यों ना मालूम होगा। मुंह फट बदतमीज कहीं की, दूसरा धोबी रख लूंगा मैं। 1 घंटे की मेहनत के बाद कहीं फेहरिस्त बनकर तैयार हुई कि कौन सा कपड़ा किसका है और किसके कपड़े कितने हैं। अब जनाब उधर धोबन से कहा गया कि तू सब के सब कपड़े गिन ले, और इधर अपनी फेहरिस्त की मीज़ान मिलानी शुरू की। धोबन गिनती है तो 59 अदद बनते हैं, चचा अपनी मीज़ान मिलाते हैं तो 61 कपड़े होते हैं। धोबन बार बार कहती है मियाँ ठीक तरह जोड़ो, 59 ही हैं, पर चचा है कि बिगड़े जा रहे हैं, तेरा जोड़ना ठीक और हमारा जोड़ना गलत हो गया। जाहिल कहीं की, उठकर देख नीचे दबाए बैठी होगी। धोबन गरीब हर तरफ देखती है, बार बार कपड़े गिनती है, वही 59 निकलते हैं। चचा की नजरों के सामने भी एक बार गिन दिए, वही 59 निकले। आखिर नए सिरे से तमाम कपड़ों का मुकाबला किया गया। कोई घंटे भर की तहकीक के बाद मालूम हुआ कि धोबन ने बताए थे 2 जोड़ी मोजे और चचा ने लिखे थे 4। धोबन उन्हें 2 अदद गिनती थी और चचा 4 अदद। उस पर भी बेचारी धोबन के लत्ते लिए गए। जोड़ी क्या माने, 4 नहीं थे मोजे। यूं तो 4 रुमालों को भी 2 जोड़ी लिखवा दे तो हमारा क्या कसूर होगा। इतना वक्त मुफ्त में ज़ाया करवा दिया। सारी उम्र कपड़े धोते गुजर गई और अभी तक कपड़े गिनने का सलीका नहीं आया तुझे। चचा ने धोबन को खूब डांटा। 12 बजे धोबन आई थी और 4 बजे रुखसत हुई। चचा छक्कन फरागत पाने के बाद फहरिस्त चची को देने आए। बोले निमटा दिया हमने धोबन को। चची जली हुई थी, बोली घर पर क़यामत भी तो गुजर गई। कोई बच्चा नंग धड़ंग फिर रहा है, कोई गुस्ल खाने में कपड़ों के लिए गुल मचा रहा है। धोबन दुखिया अलग खिसियानी होकर गई है। आधा दिन बर्बाद करके किस मज़े में कहते हैं कि निमटा दिया हमने धोबन को। चचा चिढ़ गए। तुम्हें कभी फूटे मुंह से दांत के 2 लफ्ज़ कहने की तौफीक न हुई। चचा रूठ कर चारपाई पर पड़ रहे। चची ने पूछा पाजामों में से इजारबंद निकाल लिए थे। चचा की आंखें खुली थीं मगर जवाब न दिया। बड़े मुनासिब वक्त पर रूठे थे। उतने में फहरिस्त देखकर चची बोली और ये मेरी रेशमी कमीज कौन सी, हल्के फिरोजी रंग की। ए गजब खुदा का, मैं तो वो इस्त्री करने को अलग रखी थी। कमबख्त 2 कौड़ी कर लाएगी, और उसमें से मेरे सोने के बटन भी उतार लिए थे ना, या नहीं। अब तक तो चचा की त्योरी चढ़ी हुई थी। सोने के बटनों का सुना तो हड़बड़ा कर उठ बैठे। बटन?
सोने के? तुम्हारे? यानी तुम्हें मेरी कसम। है वो तो नहीं उतारे हमने। जूती पहनते हुए चचा बाहर भागे। अरे भाई, चली गई धोबन। ओ बिंदु, चली गई धोबन। अरे मामी, किधर गई धोबन? अरे दौड़ियो, अरे भाई जाना, मुंह क्या तकते हो? सोने के बटन ले गई अम्मा, सोने के बटन तुम्हारी चची के। उसका घर किधर है? चौक से मुड़कर किधर को? अम्मा, खोंचे वाले किसी धोबन को जाते हुए देखा है? अरे भाई रेवड़ियों वाले, कोई धोबन इधर तो नहीं गई? ओ भाई गंडेरियों वाले, कोई धोबन कहाँ? दाएं हाथ को, इस तरफ को? अभी तक चचा बटन लेकर वापस नहीं आए। तो आया ना बच्चों मज़ा ये कहानी सुनकर?